Hello Eclavians, I hope that you and your family are doing well. Eclavians, as you are aware that we have already started the first chapter of organic chemistry, that is nothing but introduction to organic chemistry, and in this chapter we have already discussed 8th session. So now today I'll welcome you all to the 9th session of the chapter introduction to organic chemistry. This session will be discussing about the classification of organic compound. Rather, in details, if I want to share, the first thing that we are going to discuss is why there is a need of classification of organic compound. Secondly, how organic compounds can be classified, or what are the several ways in which organic compounds can be classified. But before starting the session, let us quickly revisit in session number 8 and see whatever we have discussed. Session number 8 talks about alkyl groups and all the other important alkyl groups that we are going to see in organic chemistry. Okay, and if you remember, in alkyl groups we have discussed several alkyl groups which are methyl, ethyl, propyl. In propyl we have discussed two things, N-propyl and isopropyl. Then the next one was butyl, sec-butyl, isobutyl and tert-butyl. Then we have also seen neo groups, right? After that we have discussed alkynyl group. Okay, alkynyl group we have discussed two important groups, one was vinyl and the another was allyl. After seeing vinyl and allyl, we have also discussed alkynyl group to be very specific propyl group, right? Last but not the least, here is the picture of some important alkyl groups that we are going to see. In this you can clearly see there is in presence of phenyl, also known as aryl group, benzyl, benzyl, benzo, vinyl, allyl, etc. Right? So if you have not gone through this session number 8, it's my personal recommendation that kindly visit session number 8, because that is a very important aspect of organic chemistry, because in JEE they will definitely screw you up for the alkyl groups, and if you don't know the alkyl groups you cannot proceed the reaction or you cannot proceed anything in organic chemistry. So do visit this session, and the link of this session is given in the description box of this video. And if you are new to the channel, I welcome you. Please do not forget to subscribe the channel, and yes, also do not forget to press that bell icon so that you can get the recent notification of my recent uploads. Okay, so with this thing, let us start session number 9. In session number 9, we will be discussing about classification of organic compound. But before that, as you all aware that each and every session start with a motivational quote. So today's quote of the session is, if the plan doesn't work, then it's a time to change the plan, not the goal. Again I will repeat, अगर plan काम नहीं कर रहा है तो अब टाइम आ गया है कि आप प्लान चेंज करो, गोल को नहीं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके कोई सर्टन प्लान है, आप मॉक टेस्ट एक प्लान करके जाते हो, जेई या नीट का जो मॉक टेस्ट हो रहा होगा आप लोग, आप एक प्लान करके जाते हो कि ये प्लानिंग के हिसाब से हमें सॉल्व करना है और स्कोर करना है. बट किसी वजह से अगर स्कोर नहीं हो रहा है तो टाइम है कि आप वो प्लानिंग चेंज करो, ना कि ये सोचो कि जेई और नीट डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा. ऐसी बात नहीं है. एंड द बेस्ट पर्सन हु कैन हेल्प यू टू चेंज द प्लान इज़ योर फैकल्टीज़. आप जाइए अपने टीचर से बात करिए, शेयर करिए अपना प्लान और अपने प्लान्स में पूछिए कि क्या क्या फ्लॉज है, सो दैट वो करेक्ट कर सके. अगर आपको ये बिलीफ है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके क्या प्लान्स हैं और मैं हेल्प आउट करूँगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए. कमेंट कर दीजिए या मेल कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मुझे पर्सनली डाल दो, मैं आपको डेफिनेटली रिवर्ट कर दूँगा. So with this motivational quote, let us start classification of organic compound, that is session number 9. Now, the first thing that should be coming in our mind is why there is a need of classification of organic compound. To give you an answer, I'll tell you to imagine your library. Okay, I hope that everyone has at least visited once in life in library. अब लाइब्रेरी में होता क्या, राइट? सपोज आपको 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की बुक चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल, 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की बुक चाहिए. तो जैसे ही आप
लाइब्रेरी में एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर सम सेक्शन मेड, जो सीनियर केजी का होगा, जूनियर केजी होगा, इस तरह से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, इस तरह से 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक के सेक्शन होंगे। ठीक है, तो आपको अगर 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की बुक चाहिए तो सबसे पहले तो आप 9th स्टैंडर्ड के सेक्शन में जाओगे। जैसे ही आप 9th स्टैंडर्ड के सेक्शन में जाओगे आपको अगेन उसी सेक्शन में और बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, जिसमें एक सेक्शन में साइंस लिखा होगा, एक सेक्शन में हिस्ट्री लिखा होगा, एक सेक्शन में लैंग्वेजेस होंगे, एक सेक्शन में ज्योग्राफी होगा। ठीक है, तो 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का बुक अगर आपको ढूंढना है तो 9th सेक्शन के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाके आप बुक रिसीव कर सकते हो। और अगर आपको डिफरेंट ऑथर्स की बुक चाहिए तो ऑब्वियसली वहाँ पे और डिफरेंट ऑथर की बुक्स रखी होगी। ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे है कि आप 9th स्टैंडर्ड की बुक अचीव कर लो। बट इमेजिन करो कि अगर आपकी लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही सेक्शन है और एक ही सेक्शन में हैफ हज़ार्ड वे में, मतलब किसी भी तरह से रैंडमली बुक्स प्लेस की है, ठीक है, तो क्या आप 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की बुक इतनी आसानी से ढूंढ पाओगे? आंसर इज नो, हम नहीं ढूंढ सकते। क्यों? बिकॉज उसका प्रॉपर बाइफर्केशन हुआ नहीं है, या रादर उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ नहीं है। तो ये जब कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हो जाए या बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या चाहिए? लाइब्रेरी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमारे लिए एक लाइब्रेरी के जैसा काम करता है। सेकंड एग्जांपल, किचन में देख लो बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक प्लेट होते हैं, स्पून्स होते हैं, कप्स होते हैं, राइट, फोक होता है, नाइफ होता है, बड़े प्लेट्स होते हैं, छोटे प्लेट्स होते हैं। हम सबको डंप नहीं करते। बड़े प्लेट्स का एक अलग सेक्शन होता है, मीडियम प्लेट्स का एक अलग सेक्शन होता है, छोटे प्लेट्स का एक अलग सेक्शन होता है, कप का एक अलग सेक्शन होता है, स्पून का एक अलग सेक्शन होता है, फोर्क का एक अलग सेक्शन होता है। तो बेसिकली हर एक चीज़ों को एक सेक्शन में रखा जाता है। अगर यही चीज़ें हम हैफ हज़ार्ड डंप करके रखेंगे तो कोई भी चीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप गाइज मैंने आपको एक इंसाइट दिया होगा कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूँ तो कुछ नहीं तो भी 20 to 25 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में है, या हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं। नेचर में नहीं, हमने आर्टिफिशियली बनाए। और अगर इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढना हो तो आप लोगों को उसका क्लासिफिकेशन पता नहीं होगा तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो सिंस देयर इज एन ह्यूमंगस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट, वी नीड टू हैव अ क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज द रीज़न वाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आई होप सबसे पहला चीज़ वाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया होगा। अब क्लासिफिकेशन के तरीके क्या है? व्हाट आर द सेवरल वेज इन विच क्लासिफिकेशन टेक्स प्लेस। ओके, so an organic compound can be classified on the basis of two things. ठीक है, an organic compound can be classified on the basis of first, on the basis of structure, second on the basis of functional group. I'll give you a small idea, then we'll go it in detail. But in session number 9, we'll be just discussing on the basis of structure, and in session number 10, we'll be discussing on the basis of functional group. So let us fixate on the basis of structure. So स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको, जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ तो स्ट्रक्चर देख के आपको ये चीज़ समझेगा कि पहले तो वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, या ब्रांच चेन कंपाउंड है, या साइक्लिक कंपाउंड है। अगर स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है तो उसमें आपको ये समझना होगा कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। साइक्लिक है तो किस तरह का साइक्लिक है? एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है? बेंजीन जैसा है या बेंजीन जैसा नहीं है? कितने मेंबर का रिंग है? तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ही हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये सेशन में। फंक्शनल ग्रुप, एज यू ऑल नो दैट इट इज़ नथिंग बट a particular atom or a group of atom which actually decides the chemical properties of the entire family. तो इसके ऊपर later on आएंगे. Let us start with the discussion of classification of organic compound on the basis of structure. So on the basis of structure, that is classification of an organic compound on the basis of structure, organic compounds are further classified as, they are further classified as, first is
open chain compound, and the second one is closed chain compound, which is also known as cyclic compounds. So first important classification of an organic compound on the basis of structure is open chain compound, जिनको हम aliphatic compounds भी कहते हैं. Okay. And the second one is closed chain compound, which is nothing but cyclic compounds. Okay. Now पहले open chain compounds को हम discuss कर लेते हैं, then we'll be discussing closed chain compound, because this closed chain compound is very important. अगर आप क्लासिफिकेशन में देखोगे तो क्लोज चेन कंपाउंड इज इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले हम ये वाइंड अप कर लेते हैं. सी एलिफैटिक कंपाउंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एलिफैटिक कंपाउंड अगेन इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. तो पहला तो होगा वो सैचुरेटेड. ठीक है, द फर्स्ट वन विल बी व्हाट, सैचुरेटेड, एंड द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड. सो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने को पता है इट इज़ ऑल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड में इट कैन बी कार्बन टू कार्बन डबल और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो यही होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस. देन अगेन इट फर्दर गेट क्लासिफाइड एज स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. स्ट्रेट चेन जिनको आप लीनियर भी कह सकते हो, लीनियर चेन कंपाउंड. सेकेंड वन इज ठीक है, स्ट्रेट चेन एंड लीनियर चेन कंपाउंड. स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के एग्जांपल बहुत सिंपल है, जिसमें कार्बन की एक सिंपल सी लाइन होगी, कोई ब्रांचेस नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं. ठीक है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स क्या होगा, कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे. ठीक है, दिस आर दी ब्रांच चेन कंपाउंड्स. अगर अनसैचुरेटेड में ब्रांच चेन कंपाउंड्स करना है तो आप इस तरह से कुछ कर लो. ठीक है, ये अनसैचुरेटेड का ब्रांच चेन हो गया. सो बेसिकली on the basis of open chain structure get classified as saturated, unsaturated. It further get classified into straight chain or linear chain compound or branch chain compound. So that is a basic classification of open chain compound, जो इतना डिटेल्स में अपने को समझना भी नहीं है, बट ये जो डिटेल में अपने को समझना है वो है क्लोज चेन कंपाउंड्स. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्लोज चेन कंपाउंड्स के रिलेटेड मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन कैसे करने वालों. आई विल राइट द नेम, मैं एग्जाम्पल भी डिस्प्ले करूंगा एंड मैं आपको 1 मिनट दूंगा भी, या इट विल बी ए बेटर थिंग दैट कि जैसे ही मैं एग्जाम्पल्स ख़त्म करता हूँ प्लीज़ पॉज करके वो एग्जाम्पल को एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज मैं बाद में एग्जाम्पल्स मिटा दूंगा. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट क्लोज चेन कंपाउंड्स, इट गेट क्लासिफाइड एज homocyclic compound. जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज नथिंग बट homocyclic compounds, and here it get classified as heterocyclic compounds. To just explain you कि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल पहले इलस्ट्रेट कर देता हूँ. इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन एंड इसका नाम है पिपिरिडीन. ओके, अब होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक का मैं डिफरेंस समझाता हूँ. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दैट कंपाउंड्स इन विच द साइक्लिक चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन. होमोसाइक्लिक एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें जो साइकिल बना होगा, जो रिंग बनी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बनी होगी.
Heterocyclic compounds, on the other hand, are said to be heterocyclic when there is in presence of at least one heteroatom. Means कार्बन की चेंज तो हो गई बट एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा, बट वो रिंग का हिस्सा होगा, रिंग के बाहर नहीं होगा। इसका मतलब भी समझाऊंगा, बट ये दोनों में अगर आप बेसिक डिफरेंस ध्यान दोगे तो ये पूरा का पूरा कार्बन से बना हुआ है। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे देखो कार्बन 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 कार्बन, बट वन ऑफ द रिंग मेंबर इज नाइट्रोजन। वन ऑफ द रिंग मेंबर इज व्हाट? नाइट्रोजन, हेंस इट बिकम्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मेरे को दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेना पड़े, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के बाद अगर मेरे को दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़े तो आई कैन टेक साइक्लोपेंटेन। अगर मुझे दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़े तो साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटेन। Over here, if I want to take one more example, इसका नाम है pyridine। इसका नाम है pyridine, एंड pyridine ये वाले स्ट्रक्चर को प्लीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, pyridine एंड piperidine में सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि pyridine में डबल बॉन्ड्स है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। ऑल्टरनेट क्या होता है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बट यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये होता है पिपेरिडीन, ये होता है pyridine। pyridine एक बहुत अच्छा बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आगे इसका नाम आप बहुत बार सुनने वाले। तो ये वाला एक एग्जाम्पल याद रखना, ऐसा नहीं ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट pyridine बहुत ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली सुनोगे। सो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ फटाक से। तो ये होता है होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, नाउ this homocyclic compounds further get classified as homo alicyclic and then again homo aromatic compounds। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, चाहे वो मैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स में मार्क करूँ या हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स में मार्क करूँ, अभी के लिए बस इतना मान के चलना कि जो भी एग्जाम्पल्स में मार्क कर रहा हूँ वो सारे के सारे एरोमेटिक होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, अ कॉन्सेप्ट नोन एज एरोमेटिसिटी, जो जीओसी में आने वाला है। तो अभी के लिए जितने एग्जाम्पल्स में इलस्ट्रेट कर रहा हूँ प्लीज़ उसको याद करते हुए चलिए, दिमाग में रखते हुए चलिए कि ये सारे कंपाउंड्स क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। जैसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्लासीफाई हुआ है वैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी क्लासीफाई होगा। इट विल गेट क्लासिफाइड एज अगेन, इट विल बी हेटेरो एलिसाइक्लिक एंड हेटेरो aromatic compound। ठीक है, अगेन हेट्रो है मतलब रिंग में एक हेट्रो एटम होगा, और होमो है मतलब रिंग में कोई हेट्रो एटम नहीं होगा, रिंग के बाहर भले चाहे हो जाए। ठीक है, जिसका फर्स्ट एग्जांपल, अगर मेरे को एग्जांपल डिस्कस करना हो तो लेट अस टेक वन ऑफ द एग्जांपल। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। अब ये ऑक्सीजन को देख के प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान देना, ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा नहीं है। रिंग में अभी भी क्या है? कार्बन 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 कार्बन। तो ये क्या होगा? होमो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो।
ठीक है। बट इसी चीज़ को अगर मेरे को होमो एरोमेटिक में कन्वर्ट करना है तो मैं बस ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड लगा दूंगा। ऑल्टरनेट होना चाहिए, याद रखना, 1 डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, ये रहा OH। तो ये हो गया अपना फिनॉल। तो आई होप आपको समझा होगा डबल सिंगल का ये क्या खेल चल रहा है। तो ये होता है साइक्लोहेक्सेनॉल, यही अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा दो तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। जैसे एक और चीज़ अगर मैं आपको इलस्ट्रेट करूं, ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस होगा। ये भी क्या आएगा, होमो एलिसाइक्लिक, ध्यान से देखो इसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सिनॉल, ठीक है। बट ऑल्टरनेट जब हो जाए डबल सिंगल तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाएगा, ठीक है। और एक अगर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करना है तो आपका फेवरेट वाला एग्जाम्पल है ये, इसका नाम प्लीज़ सोचिए एंड इफ पॉसिबल कमेंट भी करिए। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन। अगर आपने ये सोचा है तो सही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इलस्ट्रेट करने के लिए ये रखे हैं कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और होमो एरोमेटिक क्या होता है। ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें सब के सब क्या है, कार्बन्स है, रिंग में भी कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट भले लगा हुआ है बट कार्बन लगे हुए। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए मैं क्या डिस्कस कर रहा था। सेम कंपाउंड्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बट यहाँ पे डिफरेंस देखना आप। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये रिंग का हिस्सा है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, रिंग का हिस्सा है। इसके लिए क्या हो जाता है, हेट्रो एलिसाइक्लिक। अब इसके अंदर भी डबल बॉन्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा, इसी को और एक सेम स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वापस दोनों ही क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों एलिसाइक्लिक है, बिकॉज अगर ध्यान से आप अगर देखोगे इसको तो ये अगेन ऑल्टरनेट नहीं है, डबल सिंगल डबल, इट्स नॉट ऑल्टरनेट। जैसे यहाँ पे डबल सिंगल, तो ये क्या हो जाता है, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसका नाम है टेट्रा हाइड्रो पायरान। इसका नाम है टेट्राहाइड्रोपायरान और इसका सिंपली नाम है पायरान। तो ये नाम प्लीज़ याद करते हुए चलना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा। हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी देख लिया है जो है पिरिडीन का। अगर इसके पहले वाला स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना ये रहा पिरिडीन। अगर आप पिरिडीन में ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, ठीक है। देन उसके अलावा भी अगर मुझे आपको कोई अगर एग्जाम्पल देना है तो वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट आई विल बी टेकिंग इज इसको हम बोलते हैं पायरॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, पायरॉल। अब मैं इसको डबल सिंगल पे आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बट प्लीज़ इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फ़िलहाल के लिए आप याद कर लो, ये पायरॉल इज़ नथिंग बट हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। प्लीज़ इतना याद कर लेना, इट इज़ नथिंग बट हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और एक चाहिए तो हम लिख सकते हैं, इसमें पायरॉल हो गया। और एक स्ट्रक्चर अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना हो एग्जाम्पल के लिए, अभी एक स्ट्रक्चर याद आया, ये वाला स्ट्रक्चर 5 मेंबर्ड रिंग विथ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका जो नाम है अगेन इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज फ्यूरान, अगेन डबल बॉन्ड हटा दो दोनों, ठीक है। अपने को पता है एक डबल बॉन्ड हटेगा तो 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 डबल बॉन्ड हटेंगे तो 4 हाइड्रोजन आएगा। वैसे ही नाम आता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। यहाँ पे पायरान है बट अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे हटा दूँ तो इसका नाम क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। जैसे कि यहाँ पे देखो, इधर दोनों अगर डबल बॉन्ड हटा दूँ मैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोपायरान।
इसके दोनों के दोनों हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोपाइरॉल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नॉमेनक्लेचर चलता है। प्लीज़ एक बार आप वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कर लें यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। वापस से एग्जाम्पल में रब आउट कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन इतना बड़ा है कि एग्जाम्पल्स के साथ बोर्ड पे इलस्ट्रेट नहीं हो पाएगा, इसके लिए एग्जाम्पल्स को रब आउट करना पड़ रहा है। बट आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्रिस्टल क्लियर विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, आगे का क्लासिफिकेशन बात करते हैं। तो यहाँ से होमो एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर गेट क्लासिफाइड एज बेंजीनोइड्स, non-benzoids. So does the hetero aromatic compounds get classified. क्या होगा यहाँ पे अगेन, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड। नाम से ही आपको समझ जाएगा, अगर स्ट्रक्चर में बेंजीन या बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है तो हो जाएगा बेंजीनोइड। अगर बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन बेंजीनोइड। अगेन प्लीज़, मैं शायद यहाँ पे आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि वो एरोमेटिक क्यों है, बट येस हम उसको वेट करेंगे, जब एरोमेटिसिटी आएगा तो हम वापस वहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बट अभी के लिए मान लेना है कि सारे के सारे क्या होने वाले, एरोमेटिक होने वाले। तो अगर बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, अगर रिंग में या जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल उसमें अगर एक भी बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर या बेंजीन मिल गया तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, सारे का सारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर बेंजीनोइड्स की मैं बात करूँ तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। तो ये रहा बेंजीन और ये रहा OCH3, इसका नाम है एनिसोल। तो इफ़ पॉसिबल नाम याद रखने की कोशिश करो, इम्पॉर्टेंट नाम है, रेड कलर से लिख रहा हूँ मतलब इम्पॉर्टेंट ही होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल शायद से आपने खुद से देखा होगा, हमने डिस्कशन भी किया था। इफ़ यू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट नैफ्थलीन। जब मैं हाइड्रोकार्बन्स आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने नैफ्थलीन, देन इसका तीसरा मेंबर्ड भी लिया था, दैट इज एंथ्रासीन एंड फिनैंथ्रासीन का भी डिस्कशन किया था। तो ये हो गया बेंजीनोइड कंपाउंड। टॉकिंग अबाउट नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो 7 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड ओ, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड आपको याद रखना है, ये होता है ट्रोपोन। दूसरा अगर इसका एग्जाम्पल लूँ तो अगर आप ध्यान दोगे तो यही है, ट्रोपोन का ही मैंने स्ट्रक्चर बनाया थोड़ा इन्वर्ट करके। बट इसमें जो एक चीज़ मेरे को चेंज करनी है वो यहाँ पे OH लगा देना है, और जैसे ही यहाँ पे OH लगेगा इसका नाम हो जाएगा ट्रोपोलोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रोपोलोन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखना। वापस से एरोमेटिक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो इस तरह से अभी के लिए कन्विंस करना चाहते हो खुद को तो कर लो, या तो याद कर लो, इसको हम आगे डेफिनेटली प्रूफ करेंगे। टॉकिंग अबाउट बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेरे को डिस्कस करना है बेंजीनोइड्स वाले केस में, हेट्रो एरोमेटिक के केस में, तो एक नहीं दो करेंगे। पहला है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मेरे को डिस्कस करना है वो है पिरिमिडीन। ओके, पिरिमिडीन is nothing, it looks something like this.
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे, बट सेकेंड वन ड्रॉ कर लेने दीजिए। पहला है पिरिमिडीन और दूसरा है प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो पहला वाला रिंग तो इसके जैसा ही है, but it is fused with 5-membered ring once again. ओके, तो ये है, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दिस बोथ आर नोन एज नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये दोनों को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस कहते हैं, एंड दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस for DNA and RNA, that is deoxyribose nucleic acid एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि डीएनए इज़ कंपोज ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस चार या 5 टाइप के होते हैं बेसिकली। ATGC बोलते हैं या AUGC बोलते हैं, दैट इज़ एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एक्सेट्रा। वो वाला डिस्कशन अपना आने वाला है, एंड इन सभी में पिरिमिडीन एंड प्यूरिन बेसिस के डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं। तो याद रखना, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन अगर स्ट्रक्चर आपको याद रखा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गए बेंजीनॉइड्स। ठीक है, बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। टॉकिंग अबाउट नॉन बेंजीनॉइड्स, ठीक है, टॉकिंग अबाउट नॉन बेंजीनॉइड, तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में आता है वो है हिस्टमीन। अब मेरे दिमाग में हिस्टमीन क्यों आता है, बिकॉज रिसेंटली जेई 2020 में, जेई मेन 2020 में वन ऑफ द पेपर में पूछा गया था कि हिस्टमीन में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है ये कैलकुलेट करना था, और ये इंटीजर टाइप था। अगर आप लोगों को पता होगा तो पैटर्न चेंज हुआ है, 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, मतलब आपको आंसर्स खुद से मार्क करने पड़ेंगे, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो हिस्टमीन का क्वेश्चन पूछा था, और अगर जिसको हिस्टमीन का स्ट्रक्चर नहीं पता था उसने क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, बट यस हमें हिस्टमीन का स्ट्रक्चर याद रखना है। हिस्टमीन 5 मेंबर्ड रिंग है, इस तरह से कुछ, ठीक है, जिसके ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हिस्टमीन। और ये कहाँ पूछा गया था, ये वाला स्ट्रक्चर पूछा गया था JEE मेन 2020 में। तो प्लीज़ ये स्ट्रक्चर को याद रखना, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो भी हम मार्क कर रहे हैं इनका क्वेश्चंस कभी भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। सेकंड वाला एग्जांपल अगर मुझे मार्क करना हो तो मैं मार्क करूंगा थायोफीन। सी थायोफीन आ गया, मतलब सल्फर का एक कंपाउंड होगा, तो ये कुछ इस तरह से है, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें से एक मेंबर सल्फर है। ठीक है, अगर आप अगेन दोनों चीज़ों को ध्यान दोगे तो इसमें से कोई भी बेंजीन रिंग कंसिस्ट नहीं करता, बट दे आर व्हाट, एन एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आई होप आपने गो थ्रू कर लिया होगा, बट स्टिल मैं अपने तरफ से आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। So on the basis of structure, organic compounds are classified as open chain compounds and closed chain compounds. Open chain compounds further get classified as saturated and unsaturated compounds. Unsaturated compounds further get classified as double bond or triple bond that we have already seen. But both saturated and unsaturated gets classified as linear, that is straight chain, or branch chain जिसमें substitution हो. That is a very basic part, इतना important नहीं है. The important part is closed chain compound. क्लोज चेन कंपाउंड का सिर्फ आपको एक ही क्लासिफिकेशन याद रखना है, उसके बाद तो सारे सेम होंगे। क्लोज चेन कंपाउंड्स विल गेट क्लासिफाइड एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके बाद क्लासिफिकेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। होमोसाइक्लिक मीन्स जिसमें रिंग या साइकिल सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनाओ। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स जिसमें रिंग या साइकिल कार्बन के अलावा कोई और एक एटम प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक फर्दर गेट क्लासिफाइड इनटू होमो एलिसाइक्लिक एंड होमो एरोमेटिक, दैट इज
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर गेट क्लासिफाइड इनटू हेट्रो एलिसाइक्लिक एंड हेट्रो एरोमेटिक। ये दोनों का ही सिंपल सा मिलेंगे। एलिसाइक्लिक में दोनों का मतलब होगा प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बट एरोमेटिक का सिंपल सा मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बट ऑल्टरनेट प्रेजेंट होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। तो कंप्लीट डबल सिंगल होगा, इस तरह से नहीं होगा कि बीच में रुक जाए, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी देखा था पायरान का, ठीक है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। फर्दर बढ़ते हैं, होमोएरोमेटिक कंपाउंड। होमोएरोमेटिक कंपाउंड फर्दर गेट क्लासिफाइड एज बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड। सिमिलरली हेट्रोएरोमेटिक कंपाउंड गेट क्लासिफाइड एज बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड। इन सब का एक सिंपल सा मतलब यही है कि बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है तो बेंजीनोइड, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है तो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड होगा। बेंजीन है तो बेंजीनोइड, बेंजीन नहीं है तो नॉन बेंजीनोइड। बट ये सारे के सारे ही क्या होंगे, सारे के सारे क्या ही होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। So let us start solving. The question states that classify the given organic compound. ठीक है, एक क्वेश्चन एक टाइप तो ऐसा होगा कि आपको सिर्फ नाम दे दिया जाएगा और आपको क्लासीफाई करना है, तो ये वाली चीज़ों में थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एंड सिंस हम अभी अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो सबके स्ट्रक्चर तो मैं ऑलरेडी दे दूंगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, एजुलिन वाला सेगमेंट मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एवरीथिंग। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आपको सॉल्व करना है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा। और जैसे ही मेरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हो जाए प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लेना एंड सॉल्व करना। और अगर सॉल्व करने के बाद चेक करना, चेक करने के बाद अगर आंसर सही आए तो प्लीज़ हर एक क्वेश्चन पे थम्स अप ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो लेट अस स्टार्ट। एजुलिन, एजुलिन कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, एजुलिन कुछ इस तरह से दिखता है। अब एजुलिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। एजुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो अपने को ये स्ट्रक्चर याद रखना है। जेई में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्यूनोलिन भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनिलीन भी आपको सुनने मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। एंड टीएचएफ तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चार स्ट्रक्चर्स है। इमिडाजोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये याद रखना है बिकॉज अगेन इट्स अ नाइट्रोजीनियस बेस। तो अगर इसके रिलेटेड आंसर मार्क करना हो तो आप किस तरह से मार्क करोगे, आप इस तरह से लिखोगे, द गिवन कंपाउंड दैट इज एजुलिन इज फर्स्ट साइक्लिक इन नेचर, सबसे पहले। सेकेंड, इट इज होमोसाइक्लिक। थर्ड, it is homo aromatic. Last but not the least, it is non बेंजीनोइड। ठीक है, काफ़ी आसान था। पहले तो आप लोगों को दिख रहा है कि साइक्लिक नेचर का है, तो साइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्यों, क्योंकि सारे के सारे साइकिल्स अगर ध्यान दोगे तो कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। होमो एरोमेटिक क्यों, क्योंकि डबल सिंगल आप देखोगे तो अल्टरनेट है ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉन बेंजीनोइड, क्योंकि बेंजीन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल, कौन सा, एजुलिन वाला, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट क्यूनोलिन, क्यूनोलिन कुछ इस तरह से दिखता है। तो दिस इज सॉरी नाम लिखा हुआ है क्यूनोलिन। तो आप इसका क्लासिफिकेशन प्लीज़ बताइए मेरे को। ये रहा इमिडाजोल। एनिलीन की अगर बात करें तो बेंजीन पे
कोई भी कॉर्नर पे आप एक NH2 लगा दो, सो दैट बिकम्स एनिलीन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की बात करूँ तो ये रहा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। प्लीज़ वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार सॉल्व कर दीजिए। आई होप दैट कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा एंड उसको सॉल्व भी कर दिया होगा। सबसे पहले तो ये साइक्लिक है, बट साइक्लिक में एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो इधर एक हेट्रो एटम लगा हुआ है। साइक्लिक तो है ही है, बट एक हेट्रो एटम लगा हुआ है, तो इट बिकम्स हेट्रोसाइक्लिक। थर्ड वाला अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इट बिकम्स हेट्रो एरोमेटिक एंड फोर्थ में इट इज एन बेंजीनोइड। क्यों बेंजीनोइड? क्योंकि बेंजीन जैसा एक रिंग दिख रहा है। तो ये था क्यूनिलीन। अगर आपको आंसर सही मिला है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। इमिडाजोल काफ़ी क्लियर दिख रहा है, साइक्लिक, देन सेकेंड हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक में भी ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। थर्ड हेट्रोसाइक्लिक में भी इट इज एन हेट्रो एरोमेटिक। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉन बेंजीनोइड। क्यों? क्योंकि बेंजीन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। गॉट इट गाइस? ठीक है, तो अगेन अगर आपको आंसर सही मिला है तो प्लीज़ थम्स अप कर देना फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एनिलीन की अगर मैं बात करूं तो एनिलीन मेरे को पहले तो दिख रहा है साइक्लिक है, दूसरा होमोसाइक्लिक है, ठीक है, होमोसाइक्लिक के बाद तीसरा होमो एरोमेटिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेंजीनोइड है। क्योंकि बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बात करते हैं THF की, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान साइक्लिक दिख रहा है, तो साइक्लिक, ठीक है, एक हेट्रो एटम दिख रहा है तो बिकम्स हेट्रोसाइक्लिक। ओके, थर्ड अगर आप ध्यान दोगे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, अल्टरनेट तो है ही नहीं और कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो बेसिकली स्ट्रेट सैचुरेटेड वाला कंपाउंड है, तो इट बिकम्स नॉट होमो, इट इज हेट्रो एलिसाइक्लिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एक चीज़ जस्ट मेरे को याद आई क्यूनोलिन के रिलेटेड। क्यूनोलिन का और एक कंपाउंड होता है आइसोक्यूनोलिन, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सिर्फ इतना सा डिफर करेगा। ठीक है, तो ये रहा आइसोक्यूनोलिन। ध्यान देना, क्यूनोलिन में जस्ट बेंजीन के नेक्स्ट वाला कार्बन नाइट्रोजन है, बट उसमें सेकंड वाला कार्बन नाइट्रोजन है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस अगर आपको याद रखना हो तो आप रख सकते हो क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन के बीच में। अच्छा, अब इसके बाद जो मेरे को आपसे जो डिस्कस करना है वो MCQ क्वेश्चन है। MCQ क्वेश्चन इसी पे रख लेते हैं। मान लो उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एजुलिन इज रॉन्ग, ठीक है। अब रॉन्ग में वो क्या कर सकते हैं, इसको बोल देंगे साइक्लिक नहीं, ओपन चेन कंपाउंड है। स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं देंगे, इसमें से जो भी स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, सिर्फ कॉमन नेम दिया होगा। तो एजुलिन के बारे में अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप आंसर कर पाओगे। स्ट्रक्चर याद नहीं है तो ऑप्शन मान लो इसको गलत कर दिया। साइक्लिक के बजाय उन्होंने कर दिया इट्स एन स्ट्रेट चेन कंपाउंड। दूसरा होमोसाइक्लिक को वो बोल सकते हैं या हेट्रोसाइक्लिक कर सकते हो उसको, इसको हेट्रो एरोमेटिक कर सकते हैं या इसको बेंजोनोइड कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन को वो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। या
इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस थिंग। करेक्ट में मान लो इसको सिर्फ होमोसाइक्लिक के जगह पे हेट्रोसाइक्लिक कर दिया है, तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, 1 3 4 आर करेक्ट। तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से बोलेंगे, ओनली 1 इज करेक्ट, 1 2 ओनली 1 एंड 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 3 4 इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से वो ऑप्शंस बना सकते हैं। द सेम गोज टू द एंटायर क्लासिफिकेशन जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया है। तो ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो अगर आप थ्योरी एग्जाम लिख रहे हो तो वो टाइप के क्वेश्चन में ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो जिसमें आपको एक सिलेक्ट करना है तो ये कुछ स्टेटमेंट्स के टाइप पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन के बाद हम सेशन यहीं पे रोकते हैं फॉर द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सेशन कैसा लगा, आपको समझा नहीं समझा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कोई डिफ़िकल्टी आई समझने में तो कमेंट करिए या मेल करिए या मुझे टेक्स्ट करिए, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम। सो विद दिस गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट सून, टेक केयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।